मंत्री केटीआर का कहना है कि उनकी सरकार निवेशकों के प्रति वफादार रहेंगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाली कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वालों को निश्चित तौर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्री केटीआर ने हाईटेक सिटी हुडा टेक्नो इनक्लेव में जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री केटीआर ने कहा कि राज्य में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री ने राज्य में उत्पादन यूनिट स्थापित करने का आग्रह किया, तो इसके लिए पुलिंग ने स्वीकृति प्रदान की। देश में तेज रफ्तार के साथ विकास कर रहे राज्यों में हैदराबाद सबसे आगे खड़ा हो रहा है, कहकर मंत्री ने शहर की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोडक्ट के महाप्रबंधक दवे पुलिंग भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोडक्ट के महाप्रबंधक दवे पुलिंग भी उपस्थित हुए। Dave and the entire team was briefing us on the large ambitions for India and how they'd want to do more in India and particularly in Hyderabad and Telangana. So we were offering him some opportunities. We were telling him how Telangana is in the process of building the world's largest innovation campus where T-Hub, T-Works and Image Tower, all of them would be housed in a single location, all would be co-located. So maybe Johnson Controls could participate in that. We were also telling him about how Telangana has built a world-class police command control center, which is almost on the verge of getting unveiled, and again potentially Johnson Controls could play a role or get a piece of that and see how we could work together. The third thing I also mentioned to him is the new administrative nerve center, the new secretariat building that is also coming up in the next few months, and how Johnson Controls again could possibly work with us and see how we could help you there as well. But one of the things I was also mentioning to Dave is India is a large market. India as a country is about 1.4 billion people with a large affluent middle class of more than 400 million people. And India is a country that is growing and growing fast. मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सभी को गर्व है कि हैदराबाद वैक्सीन हब बन गया है। मंत्री ने कहा है कि हैदराबाद में चिकित्सा पर्यटन अच्छी तरह से विकसित कर रहा है। మనము 7 ఏళ్లలో 33 తీసుకుపోగలిగాం। ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్। ఇది మన రాష్ట్రం పట్ల మనకు ఉండే కన్సర్న్। నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడకపోతే అయ్యుండేదా? ఇన్ని మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చిండేటియా? ఇవాళ హైదరాబాద్ లో కూడా మా డాక్టర్ గారు నన్ను క్షమించాలి కానీ ఇప్పుడు 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు తెస్తున్నాం। మూసీ అవతల మాది ఒకటే ఉందన్నాడు మా డాక్టర్ సాబ్, మేము ఇంకోటి రాబోతున్నాం। ఎల్బీ నగర్ వస్తున్నాం। ఎల్బీ నగర్ గడ్డి అన్నారం ఫ్రూట్ మార్కెట్ లో 1000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రభుత్వ రంగంలో వస్తుంది। మీరు ఏమేమి సేవలు ఇక్కడ ఇస్తున్నారో మేము కూడా అన్ని సేవలు ఇస్తాం। క్యాన్సర్ ఇస్తాం, కిడ్నీకి ఇస్తాం, హార్ట్కి ఇస్తాం, అన్ని సేవలు కూడా తీసుకొస్తున్నాం। ఇవాళ హైదరాబాద్ ఏమైంది అసలు బ్యాడ్లకి ఏంటంటే ఎన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినా ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినా ఎవరు ఆలోచించలేదు। అదే 150 ఏళ్ల కింద బ్రిటిష్ పీరియడ్ లో ఆ బ్రిటిష్ ఆర్మీ కోసం పెట్టిన గాంధీ దవాఖానా, నిజాం నవాబ్ పెట్టిన ఉస్మానియా దవాఖానా, అటు నిజాం పెట్టింది బ్రిటిష్ దవాఖానా తప్ప కొత్త దవాఖానే రాలేదు। బొక్కల దవాఖానా వస్తే దాని పేరే నిమ్స్, నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్। ఆ బొక్కల దవాఖానా కూడా నిజాం పెట్టింది। మరి 70 ఏళ్లలో ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి ఒక దవాఖానా కొత్తది రాలేదు। బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన గాంధీ, నిజాం పెట్టిన ఉస్మానియా, ఒక్కటంటే వచ్చిందంటే ఒక్కటి రాలేదు। ఇప్పుడు సూపర్ స్పెషాలిటీ కేర్ బాగా పెరుగుతా ఉంది అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ లో నలుదిక్కుల। राज्यपाल तमिलिसाई का मानना है कि रक्तदान करना सबकी जिम्मेदारी है। तमिलिसाई ने कहा है कि रक्तदान दिवस को उत्सव के माहौल की तरह मनाया जाना चाहिए। राज्यपाल तमिलिसाई ने विश्व रक्त दिवस के अवसर पर राजभवन स्थित संस्कृत सभागार में आयोजित समारोह में भाग लिया। राज्यपाल तमिलिसाई का कहना है कि रक्तदान कई लोगों की जान बचा सकता है। राज्यपाल ने चिंता व्यक्त की है कि तेलंगाना में थैलेसीमिया पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। एनीमिया का बढ़ना चिंता का विषय बताया जा रहा है। राज्यपाल ने इस संबंध में सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। House surgeons, usually in the ICU we won't allow the close relatives, but they will be always around the patient. And we used to go and tell our chief, sir, we are unable to get rid of these relatives. They are always surrounding the patient.
then our chief used to tell, you go and tell, this person needs 2 to 3 bottles of blood, who are all close relatives, please come to the blood bank and donate blood. We will go and tell that, and within few minutes, everyone will fly away from that area. Nobody will be around the patient. So even relatives are so hesitant to donate blood. Even before that, they will tell, no, I am the closest relative, I am the uncle, I am the aunt, so I have to be with him. Like that they used to tell. But when we tell that, everyone will abscond. Nobody will be with the patient. So even the relatives are so hesitant to donate blood, but the donors, not knowing to whom we are donating, and they are donating the blood, I congratulate each and every one of them. But it should be taken as a great moment. Nobody should lose their life without blood. And I thank the blood donors who were here, and donors who are donating the blood all over the country, all over the state, without knowing to whom they are serving. And I congratulate each one of them, and I appeal the Red Cross. टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने पूछताछ के नाम पर राहुल गांधी को परेशान करने पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। रेवंत रेड्डी ने आपराधिक मानसिकता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि 1 दशक के बाद इस मामले को उठाया गया ताकि राहुल गांधी को परेशान किया जाए। మీరు ఇంకా ఎక్కువ చేసి ఆమె మీద మానసిక దాడి చేస్తున్నారు. లోపల ఉన్న రాహుల్ గాంధీ గారిని మీరు ఏదో ఒత్తిడి చేయాలనుకుంటున్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారు అధికారం కోసమో లేకపోతే మీలాంటి అక్రమార్కులకు లొంగేది లేదు, భయపడేది లేదు. రాహుల్ గాంధీ గారు ముందే చెప్పారు, మా నాయన మీ దేశం కోసం ప్రాణం ఇచ్చింది, మా నాయన ఈ దేశం కోసం ప్రాణం ఇచ్చిండు, నేను నా ప్రాణాలను నా రక్తాన్ని దేశం కోసం ధారపోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని రాహుల్ గాంధీ గారు స్వయంగా చెప్పిండ్రు. వారి ఆదేశాల ప్రకారం ఇయాల రాజీవ్ గాంధీ గారు బలిదానం కావడం జరిగింది. ఇది ఒక పెద్ద చరిత్ర. భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒకటే అడుగుతున్నాము, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ చరిత్ర మీ భారతీయ జనతా పార్టీలో ఒక్కరికైనా మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఈ స్వాతంత్రం కోసం, దేశ ప్రజల కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన ఒక నాయకుడు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు అని చెప్పగలుగుతారా? ఛాతీ మీద చేసుకొని అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా స్పష్టంగా అడుగుతున్నది. మనందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఆ రోజు ఆర్ఎస్ఎస్ అనే ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు గాంధీ ఫ్యామిలీ మీద పగ రాజకీయం చేస్తున్నది. ఆ రోజు స్వతంత్ర కాలంలో కూడా చరిత్రలో మనం చూసినాము, బ్రిటిష్ కి వత్తాసు. हयातनगर पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को 41A के तहत नोटिस जारी किया है। बीजेपी हाउस में सीएम केसीआर पर कथित रूप से अनुचित टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने पार्टी नेता रानी रुद्रम्मा और दरवू एल्लन्ना को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के तहत बंडी संजय को नोटिस दिया था। जुबली हिल्स की नाबालिग लड़की से रेप मामले में नई बातें सामने आई है। एमनेशिया पब मामले में आरोपी की हिरासत खत्म हो गई है। पुलिस ने कहा है कि अब तक इस मामले में 17 गवाहों की पहचान की है और 7 से पूछताछ की गई है। पुलिस ने बेंच कार के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बलात्कारी की पहचान इनोवा वाहन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मासी उल्लाह खान के रूप में की है। वीडियो बनाने वाली नाबालिग से आरोपी नाराज हो गए। पुलिस ने बताया है कि वीडियो लीक को लेकर आरोपियों के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने फैसला सुनाया है कि जिस इनोवा कार में यौन उत्पीड़न हुआ वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की आधिकारिक गाड़ी नहीं थी। पुलिस ने कहा है कि कार के मालिक ने इनोवा में सरकारी पहचान से संबंधित स्टिकर लगाया था। नई किताबों और यूनिफॉर्म की कमी तेलंगाना में स्कूलों की शुरुआत में छात्रों के लिए गंभीर रूप से बाधा बन रही है। स्थिति ऐसी है कि छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म के लिए महीनों में कई दिन इंतजार करना पड़ सकता है। छात्रों के माता पिता यह कहकर आलोचना कर रहे हैं कि पूर्व योजनाओं के बिना सरकार ने स्कूल आरंभ करने की अनुमति कैसे दे दी।
छात्रों के माता पिता की आलोचना हो रही है कि सरकार और शिक्षा विभाग के किताबें छापने और यूनिफॉर्म ऑर्डर करने में देरी की है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां छात्रों को खाली बैग और पुरानी वर्दी के साथ स्कूल जाना पड़ रहा है। अधिकारियों ने फैसला किया है कि नई किताबें आने तक छात्रों को पुरानी किताबों के साथ पढ़ना जारी रखना चाहिए। अभिभावकों को चिंता है कि अधिकारियों की लापरवाही से छात्रों को नुकसान हो रहा है। लंबे समय से प्रतीक्षित दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार तेलंगाना में प्रवेश कर गया है। हैदराबाद मौसम विज्ञान विभाग ने घोषणा की है कि अगले 24 घंटों में तेलंगाना के कुछ और जिलों में विस्तार होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के बावजूद जून खतरनाक रहेगा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा, मानसून सक्रिय नहीं है और जून में भी समन्वय वर्षा की संभावना नहीं है। दिल्ली और हैदराबाद मौसम विभाग ने मानसून के मौसम में समन्वय से अधिक बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जून में सामान्य और जुलाई, अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। साइबराबाद सीपी स्टीवन रविंद्र ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण पर समीक्षा बैठक की। सीपी स्टीवन रविंद्र ने यातायात पुलिस और सीपी कमिश्नरेट के कर्मचारियों से सड़क के हालात, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या को कम करने के निर्देश दिए। सीपी ने ड्रंक एंड ड्राइव, पेनाल्टी, ट्रैफिक मूवमेंट लिंक, रोड का उपयोग जागरूकता, ट्रैफिक ब्लैक स्पॉट और रोड इंजीनियरिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सीपी ने कर्मचारियों को साइबराबाद क्षेत्र में यातायात की समस्याओं को फील्ड स्तर पर देखने और उसके अनुसार योजना बनाने का निर्देश दिया। सीपी ने उन क्षेत्रों की पहचान करने का सुझाव दिया जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है और उन क्षेत्रों में अधिक दुर्घटनाएं क्यों होती है और एक कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया। अवैध रूप से चल रही स्कूली बसों और आरटीसी अधिकारी कार्रवाई शुरू कर दिया है। स्कूल खुलने के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हैदराबाद परिवहन विभाग ने अधिकारियों ने 5 स्कूल बसों को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने रंगारेड्डी जिले में शैक्षणिक बसों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने उन शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित बसों को जब्त कर लिया है जिनकी फिटनेस ठीक नहीं थी और उन्होंने करों का भुगतान नहीं किया था। परिवहन उप अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया है कि अकेले रंगारेड्डी जिले में एक ही दिन में 33 बसें जब्त की गई। मल्काजगिरी की डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने चेतावनी दी है कि अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाचाराम पीएस यूनिट ने मल्लापुर डिवीजन एनटीआर नगर में गहन तलाशी अभियान चलाया। डीसीपी रक्षिता द्वारा की गई तलाशी अभियान में लगभग 250 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। पुलिस ने बिना उचित प्रमाण पत्र के 27 बाइक और 2 ऑटो जब्त किए। डीसीपी ने कहा है वह सुरक्षा कारणों से तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि लाभ के लिए अवैध रूप से माल की ढुलाई की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया गया कि कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इकड़ेमो तप्पु जरुगुतुंदनी कादु, మీకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే, మీ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే అది ఇక్కడే మేము పరిష్కారం చేస్తాము. ఇప్పుడు వాళ్ళ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర కూడా మేము మాట్లాడాము. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ అన్నీ మంచిగా జరుగుతుంది. కొంచెం సీసీటీవీ కెమెరాస్ గురించి చెప్పారు. సో ఇప్పుడే వాళ్ళు కూడా 3 lakhs వర్త్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఇంకా త్వరగానే మేబీ ఇన్ మంత్స్ టైం ఇక్కడ 22 lanes వస్తుంది, 11 lanes. సో ఒక్కొక్క లేన్లో కూడా ఇఫ్ వీ కవర్ 22 cameras will 100% get it done in the next 1 month. వెండర్ని వాళ్ళనే కల్పించి విల్ ఎన్షూర్ దట్ దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా మొత్తం కెమెరాస్లో కవర్ అవుతుంది అని. అండ్ అక్కడి నుంచి ఒక లింక్ మన పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తీసుకుంటాం. సో నైట్ టైమ్స్ కొన్ని వాళ్ళకి ఇష్యూస్ ఉంది. పాత ఎప్పుడో పెట్రోల్ తీసేది, డీజిల్ తీసేది అని కొంత ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యింది. సో అది కూడా మేము పరిష్కారం చేస్తాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి మొత్తం 200 houses ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇక్కడ బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు సెటిలర్స్. బయట నుంచి అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు, నారాయణపేట, గద్వాల్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఉద్యోగం అని చేసింది ఫ్లవర్ వెండర్స్, ఇక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో పని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర కూడా మేము డిస్కషన్ చేసాము. ప్రస్తుతానికి जाति और गोत्र एक होना उन प्रेमियों के लिए अभिशाप बन गया है। बेगम बाजार कोलसावाड़ी के मूल निवासी कृष्णा उपाध्याय ने बताया है कि अश्विनी से जुलाई 2020 में आर्य समाज में शादी की थी। पीड़िता अश्विनी ने पुलिस में शिकायत की थी कि शादी के बाद से ही उसके परिवार से प्रताड़ना बढ़ गई है।
कृष्णा और अश्विनी ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस से संपर्क किया है क्योंकि लड़की के पिता से उत्पीड़ना तेज हो गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने लड़के कृष्णा उपाध्याय के परिवार को जाति व्यवस्था से निकाल दिया था। साथ ही बार बार धमकियां भी दी जा रही है। हाल ही में बेगम बाजार में नीरज पवार की हत्या के बाद से कृष्णा परिवार को और प्रताड़ित किया गया है। पीड़िता ने कहा है उसके पिता ने अश्विनी को गंभीर धमकियों से चेतावनी दी थी कि जो हाल नीरज परिवार का हुआ वही उसका भी किया जाएगा। अश्विनी और उसके ससुराल ने अफजलगंज थाना जाकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरे हस्बैंड का नाम कृष्णा उपाध्याय है। हम दोनों 18 जुलाई 2020 में शादी करें, लव मैरिज करें हम दोनों। हमारे घर वालों को किसी को भी नहीं मालूम था हमारी शादी के बारे में। हम लोग आर्य समाज में जाके शादी करें। शादी के नेक्स्ट दिन से मेरे को टॉर्चर स्टार्ट हो गया मेरी फैमिली वालों की तरफ से। मेरे इन लॉज मेरे को एक्सेप्ट कर लिए, वो लोग मेरे को अच्छे से रख रहे। मेरे फैमिली मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी, मेरे पेरेंट्स और सब लोग मेरे को तंग कर रहे, 2 साल से परेशान कर रहे। मेरे को 2 साल से परेशान कर रहे कि है ना मैं शादी तोड़ दूँ, मैं डिवोर्स लेके मेरे हस्बैंड को छोड़ के आ जाऊँ। और वो लोग धमकी दे रहे कि मैं अगर डिवोर्स और नहीं ली तो मेरे हस्बैंड को हार्म करते बोल के, या तो मेरे को हार्म करते बोल के, या तो मेरे को ऑप्शन दे रहे कि मैं डिवोर्स ले लूँ बोल के। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रही हूँ, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो। मेरे को जो ये सोशल बाइकआउटिंग कर रहे हैं मेरे फैमिली वाले सोशली बैकआउट कर रहे हैं हमारे को, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही कि मेरे को सपोर्ट करो। अलग अलग कास्ट के हैं? नहीं, हम लोग सेम कास्ट के हैं, बस हमारा गोत्र एक है जो हमको नहीं मालूम था। शादी के बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा। नहीं, अब ये बोलिए बच्चा जो करे बच्चा कहाँ है? बच्चे को क्या टॉर्चर करे तो बच्चे को क्या हुआ? उन्होंने टेंशन लेके उन हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उनकी चेस्ट में पेन हो रहा उनको। चेस्ट में पेन हो रहा उनको, ये सब टेंशन ना लेने की वजह से। अच्छा। हाँ, उनको भी हार्म करते बोल के बोले ना। 2 साल से हमको ये सब धमकियाँ आ रही, तो वही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ। राज्य के खेल अध्यक्ष वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर खेलों को बहुत महत्व दे रहे हैं। वेंकटेश्वर रेड्डी ने युवाओं से खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने और देश और राज्य को अच्छी पहचान दिलाने का आह्वान किया। ना पेन रखता तुम कहीं का सेक्रेटरी है तुम? चलो ना प्लेयर भारत के आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में अपना खाता खोल दिया है। सफारी टीम पहले से ही 2 मैच जीतने और सीरीज जीतने की प्रक्रिया में है। भारत ने सफारी टीम के उम्मीदवारों पर पानी फेरते हुए जरूरी मैच में 48 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के ऋतुराज गायकवाड़ 35 गेंदों में 57 रन और ईशांत किशन 35 गेंदों में 54 रन के अर्धशतक जमाया। भारत ने 5 विकेटों पर 179 रन बनाए। 180 के लक्ष्य के साथ रिंग में उतरी सफारी 131 रन पर सिमट गई। इससे दक्षिण अफ्रीका को सीरीज में 2-1 की बढ़त मिल गई।